तो जो हम कल बात कर रहे थे कि टोटल कितने डीमंस होते हैं, 5 डीमंस के बारे में बात किया था। तो वो सारा हम देखते हैं। लाइक ऐसे बात कर रहे थे HDFS आर्किटेक्चर का। So when we talk about HDFS architecture, तो HDFS आर्किटेक्चर में हमने बोला था there are 5 daemons: name node, second one is a secondary name node, third one is a job tracker, fourth data node, and fifth one task tracker. विजुअल है जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है या नहीं? यस सर। विजुअल है, दिख रहा है पूरा बढ़िया? यस सर। ठीक है। तो हमने ये बोला था कि देयर आर 5 डीमंस इन HDFS आर्किटेक्चर: नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, डेटा नोड एंड टास्क ट्रैकर। ये सारे 5 डीमंस होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें HDFS आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट आर द नीड टू अडॉप्ट द HDFS आर्किटेक्चर? तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, then we know that memory is fragmented in different parts and the size of each cell, like as ये हमारी मेमोरी है, तो divided into many cells and each cell either 2 MB or 4 MB. Sorry, either 2 KB or 4 KB. The size of each cell either 2 KB or 4 KB. But when we talk about the HDFS architecture, then this size now will be either 64 MB or 128 MB or any multiple of 64 MB. Basically, there are 2 versions available: MapReduce R1 and R2. तो जब Hadoop with MapReduce 1 की तरफ बात करेंगे, then the size of each cell will be 64 MB. और जब हम Hadoop 2 आर्किटेक्चर की बात करेंगे 2.0 की, then the size of each cell 128 MB. Why we need the size of 64 MB and 128 MB in compare of 2 KB or 4 KB? Because in the case of HDFS architecture, or because in the case of big data concept, size are not in the normal form. Means the data size are very huge. So when the data size are very huge, then if we use the concept where each cell is divided into 2 KB and 4 KB, then the storing process is very heavy, or it will take a huge time to store the data and to process the data. So we divide the memory into 64 or 128. One advantage also that suppose if we are working in the normal concept or traditional concept, then suppose that the size of each cell is 4 KB, and if we are using only 2 KB or 3 KB, then the remaining size means 1 KB which are now remaining, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था, जैसे कि हमें टेक्स्ट फाइल अपलोड करना है जो 3 KB का है, तो एक सेल में जाएगा और एक सेल की साइज सपोज करो 4 KB है, then 4 KB minus 3 KB is equal to 1 KB, and this 1 KB size will be wasted. There will be no any use for any another types of data.
For example, if we have a two file a.txt and b.txt, the size of a.txt is 3 KB and the size of b.txt is 1 KB. And we want to adopt this concept where the size of block is 4 KB. Suppose the size of block is 4 KB. So when we want to store a.txt file, then we store this and the size of this cell is 4 KB. When we store a.txt, then 4 KB में से 3 KB space occupy हो गया, 1 KB space बचा. Now we want to store b.txt, then this b.txt will not store in the same fragmentation. यहां पे हमारा स्टोर नहीं होगा, बिकॉज यही हमारा डिसएडवांटेज है इस कॉन्सेप्ट का कि रिमेनिंग स्पेस नाउ नॉट विल बी यूटिलाइज फॉर एनी फर्दर टाइप ऑफ डेटा. लेकिन अगर मैं इसको HDFS आर्किटेक्चर में इनबिल्ड करता हूं, तो सपोज करो कि हर एक सेल की साइज 64 MB है और मैं एक फाइल स्टोर करना चाहता हूं a.txt जिसकी साइज 50 MB है और b.txt साइज 30 MB है. b.txt की साइज 30 MB या सपोज करो भी 10 MB है. So when we store a.txt in a particular block, we know that the size of this cell is 64 MB in HDFS architecture, and when we store a.txt, then 64 minus 50 is equal to 14 MB space will be free. Now this 14 MB space will be utilized by b.txt. This one is another advantage of using HDFS architecture. इतनी बात क्लियर है? अभी बताओ. अरे कोई तो बोलो हाँ या ना. Yes sir, clear. Now we will see the architecture. कल हमने ये भी बताया था कि देयर आर 5 डिमेंस, जितना हमने लिखा है ये बताया था, और हमने ये भी बोला था कि these 3 demons, name node, secondary name node and job tracker is called master services. And these two are known as a slash services. Okay. And the component of master services can communicate the corresponding component of the slash services. Means name node can communicate with the data node. Name node can communicate with the data node. And job tracker can communicate with the task tracker. Name node cannot communicate with the job tracker. Name node cannot communicate with the task tracker. Data node cannot communicate with the task tracker, because these are in the same services. Either it will be in the master services or in the slab services. So the component of master services can communicate with the corresponding component of the slab services. Means if name node is the master node, then its corresponding slab node is the data node. And if job tracker is a master node, then its corresponding slab node is a task tracker. इतनी बात क्लियर है. अब हम आगे देखते हैं
कि इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से बनेगा। तो आर्किटेक्चर बनाने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर और डेटा नोड। और इसको बताने के लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था खेत वाला। तो उस एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं और उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे आर्किटेक्चर। सपोज दैट दिस इज वन फार्मर और इसके पास पहले साल में 10 बोरी आलू हुआ तो वो अपने घर में रखता क्योंकि उतनी स्पेस उसके घर में थी। अगले साल 20 बोरा आलू हुआ तो फिर उसको अपने घर में रखा क्योंकि उतनी स्पेस थी। सपोज करिए तीसरे साल उसके पास 200 बोरी आलू हो गए। 200 बोरी आलू जब उसके पास हो गया तो वो अपने घर में नहीं रख सकता है, वो कहाँ पे लेकर के जाएगा? कोल्ड स्टोरेज में। तो ये बड़ी सी बिल्डिंग हो गई कोल्ड स्टोरेज। और इस कोल्ड स्टोरेज में जब जाएगा तो एक क्लर्क होगा। तो सबसे पहले ये किसान कम्युनिकेट करेगा क्लर्क से कि मेरे पास 200 बोरी आलू है और मैं इस आलू को कोल्ड स्टोर में रखना चाहता हूँ। तो क्लर्क के पास एक बही खाता होगा, उसमें कुछ लिखा होगा भाई हर एक पन्ने पे कि क्या क्या हमारा रिकॉर्ड है। और कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारे कमरे बने होंगे। कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारे कमरे होंगे जहां पे लोग अपना आलू रखते होंगे। तो ये 8 कमरे हैं कोल्ड स्टोरेज में, 8 कमरा। ठीक है, थोड़ा और नीचे बना लेता हूं। ये टोटल 8 कमरे हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो अगर ये 200 बोरा आलू रखना चाहता है तो सबसे पहले क्लर्क के पास जाएगा। क्लर्क अपने बही खाते में देखेगा और देख करके कहेगा कि भाई हमारे पास कई सारे रूम हैं, लाइक रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और उसने चेक किया तो बोला कि हमारे यहाँ रूम 1, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 6 और रूम नंबर 8 में जगह खाली है। इसमें जगह खाली है, ठीक है। लेकिन जगह इस तरीके से खाली है कि हर एक रूम में आप केवल 64 बोरी ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। आप केवल 64 बोरी ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो जब क्लर्क ने बताया तो ये इंफॉर्मेशन किसान को मिला कि भाई रूम नंबर 1 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, 6 में रख सकते हैं, 8 में रख सकते हैं। इसके पास टोटल 200 बोरी था। तो अगर वो 64 बोरी एक कमरे में रखेगा तो टोटल कितने कमरे की जरूरत होगी? कितने कमरों की जरूरत होगी? 4 कमरों की। देखो 64 एक में जाएगा, अगेन 64 एक में, अगेन 64 एक में, तो टोटल हो गया 192। और बाकी जो रिमेनिंग 8 बोरी होगा वो कहीं और जाएगा। तो टोटल 4 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको 5 कमरे मिल गए। तो ये बोलेगा क्लर्क से मुझे केवल 4 कमरे चाहिए, आप मुझे 1, 3, 4, 6 दे दो। तो क्लर्क ने अपने बही खाते में लिख दिया कि भाई एक किसान आया था जिसका नाम ABC था, उसने अपना आलू रूम नंबर 1, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 और रूम नंबर 6 में रखा है। अब किसान ले जाकर के अपना एक बोरा तो रूम नंबर 1 में रख देगा, एक बोरा कहाँ पे रखेगा? रूम नंबर 3 में रखेगा। एक बोरा 3 में रखा, एक बोरा रूम नंबर 1 में रखा है, एक बोरा 4 में रखा और एक 6 में रखा। 64 और 64 बोरा यहाँ पे, 64 यहाँ पे, बाकी जो 8 बचा था वो 6 में रखा। तो ये पूरी कहानी हो गई।
मतलब आलू को स्टोर करना कोल्ड स्टोरेज, मतलब कि डेटा को स्टोर करना किसी ऐसी जगह पे जहां पे डेटा को स्टोर करने के लिए मशीनें बनाई गई। Now the same concept will work in the case of HDFS architecture, because we know that HDFS architecture is used to store the data. Suppose that we have a 200 MB file. हालांकि जब बिग डेटा की बात करते हैं तो 200 MB नॉट अ बिग डेटा, बट फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि सपोज करिए if we have a 200 MB file and we want to store in this architecture, so this 200 MB data divided into various types of files, like as this 200 MB data divided into 64 MB, 64 MB, 64 MB and 8 MB, and the name of this is a.txt, b.txt text file मैंने assume कर लिया, c.txt and this one is the d.txt. तो सेम वही कि पहले क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा कलर के पास, और इस कलर का क्या नाम होता है, मशीन होता, कोई कलर नहीं होता है, नेम नोड. दिस वन इज द नेम नोड एंड देयर इज ओनली वन नेम नोड इन ऑफ सिंगल आर्किटेक्चर. जो नेम नोड अपना बही खाता मेंटेन करके रखता है, दिस वन इज कॉल्ड मेटा डेटा, मीन्स डेटा अबाउट द डेटा. तो नेम नोड अपने पास एक मेटा डेटा रखेगा. Now the client can communicate with the name node and name node see the metadata. After seeing that, it informs to the client that we have a space on data node. This one is the data node. This one is the data node. Like as the DN1, DN2, data node 3, data node 4, data node 5, data node 6, data node 7 and the data node 8. क्योंकि कि कल हमने पढ़ा था कि नेम नोड ओनली कंटेन मेटा डेटा, बट द एक्चुअल डेटा आर अवेलेबल एट द डेटा नोड. So there is a single name node in the whole architecture. So this one is the called single point failure. Name node is known as a single point failure. सिंगल पॉइंट फेल्योर. जैसे कि अगर नेम नोड फेल कर गया तो पूरा आर्किटेक्चर हमारा फेल कर जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा. So name node is known as a single point of failure, and the name node machine is a very high configurable machine. Very high configurable machine. But data node is our commodity hardware. अगर डेटा नोड 1 खराब होगा तो पूरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा. डेटा नोड 2 खराब हो जाता है तो भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो नेम नोड ने अपने मेटा डेटा में चेक किया और क्लाइंट को बताया कि वी हैव स्पेस 1346. सो एक 64 MB की फाइल में दिस वन a.txt डेटा नोड 1 पे चला गया, b.txt डेटा नोड 3 पे चला गया, c.txt डेटा नोड 4 पे चला गया एंड d.txt डेटा नोड 6 पे चला गया. ठीक है, तो हर एक डेटा हमारा इस तरीके से गया है कि a.txt, b.txt, c.txt और d.txt कहां पे जाएगा. तो डेटा तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई. अब क्या होगा कि हमने ये भी पढ़ा था कि HDFS आर्किटेक्चर को 3 रिप्लिका बनाता है और वो कोई भी बना सकता है बस अपने आप को छोड़ करके. When data node 1 receive a.txt, then it send a confirmation message to the name node that I have a file a.txt and also I have made a replica on data node 2 as well as we have a replica
at data node 3. कम से कम 3 रिप्लिका होगा, एक तो ओरिजिनल बाकी 2 और। तो a.txt नेम नोड को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आई हैव अ फाइल a.txt and I made another 2 replica which are available on data node 2 as well as data node 3. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेम नोड कैन कम्युनिकेट विद द डेटा नोड. एक नेम नोड इज अ मास्टर सर्विसेज, देन द करस्पॉन्डिंग डेटा नोड इज आवर मैप सर्विस. सेम टू सेम वे b.txt भी एक इंफॉर्मेशन भेजेगा डेटा नेम नोड को कि आई हैव अ b.txt, आई मेक अ रिप्लिका ऑन डेटा नोड 4 as well as डेटा नोड 2. कहीं पे भी बना सकते हो, किसी भी सिस्टम पे बना सकते हो, किसी भी डेटा नोड पे बना सकते हो, बट अपने आप को छोड़ दो. और सेम वे सी भी रिप्लिका बनाएगा, तो सपोज करो कि सी रिप्लिका एक DN8 पे बना दिया और एक DN7 पे बना दिया. सेम वे b.txt भी रिप्लिका जनरेट करेगा. सपोज गए इट विल जनरेट अ रिप्लिका ऑन डेटा नोड 5 एंड रिप्लिका ऑन डेटा नोड 7. और ये सारे अपने इंफॉर्मेशन नेम नोड को भेजता रहेगा. जैसे कि a.txt भेजेगा, सॉरी डेटा नोड 1 भेजेगा, डेटा नोड 3 भेजेगा, डेटा नोड 4 भी भेजेगा, डेटा नोड 6 भी भेजेगा. जहां पे डेटा हमारा अवेलेबल होगा वो सारे डेटा नोड नेम नोड को इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे. एंड हर एक डेटा नोड जितने भी हमारे डेटा नोड हैं, सारे के सारे डेटा नोड हार्ट बीट सेंड करते हैं नेम नोड को. हार्ट बीट सेंड करने का मतलब यही है कि हर एक डेटा नोड नेम नोड को इन्फॉर्म करता रहता है कि अभी मैं वर्क कर रहा हूं, अभी मैं डेड नहीं हुआ हूं, अभी मेरी मशीन वर्क कर रही है. तो ईच डेटा नोड सेंड हार्ट बीट टू नेम नोड every 3 seconds. आफ्टर एवरी 3 सेकंड, हर 3 सेकंड के बाद. इफ नेम नोड नॉट रिसीव हार्ट बीट ऑफ एनी डेटा नोड, then this name node will wait 10 cycles. 10 cycle means will wait 30 seconds for data node 1. If data node 1 again not send after 30 seconds, then the name node make data node 1 as a dead. और डेटा नोड 1 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा मेटा डेटा से, और मेटा डेटा में देखेगा कि भाई डेटा नोड 1 के पास जो डेटा पड़ा हुआ था उसकी रिप्लिका कहाँ कहाँ पे है. तो उसकी रिप्लिका डेटा नोड 2 पे भी है, डेटा नोड 3 पे भी. तो डेटा नोड 2 या डेटा नोड 3 किसी को भी किसी एक डेटा नोड को इन्फॉर्म करेगा और कहेगा कि नाउ द डेटा which are actually the data node 1 now will be replicated to another data node. मीन्स जो डेटा नोड 1 का एक्चुअल डेटा है वो अब तुम्हारे द्वारा किसी तीसरे डेटा नोड पे रिप्लिकेट किया जाएगा, केवल एक कॉपी, क्योंकि कि डेटा नोड 1 खत्म हो चुका है. तो बाय दिस वे पूरा साइकिल सिस्टम हमारा चलता रहता है. तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कमोडिटी हार्डवेयर, सस्ता हार्डवेयर, घटिया हार्डवेयर, जिसको हम यूज करते हैं जब हमें पता है कि घटिया हार्डवेयर है तो हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो हमारा सस्ता पड़ता है. अगर यही मैं डेटा नोड 1 के हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट 3000 रुपए की यूज कर रहा हूं और स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क हमारा 20,000 रुपए का मिलेगा 1 टेराबाइट का, तो अगर मैं 3 करके 3 यूज कर लूंगा तो ही 9,000 रुपए हो रहा है, हमारे 11,000 रुपए बच रहा है. तो जो कॉस्ट फैक्टर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम डेटा नोड बनाते हैं एंड वी मेक अ 3 रिप्लिका ऑफ एवरी डेटा नोड
अगर किसी डेटा नोड पे कोई भी डेटा नोड बस्ट कर जाता है तो उसमें जो भी डेटा अवेलेबल है वो किसी भी टाइम हम रिसीव कर सकते हैं अपने आर्किटेक्चर। So this one is the whole concept of data node. किसी को कोई कंफ्यूजन हो then can ask the question.